Okay, now it is being recorded. Chalo, you please remind me every day whenever I start the class. Now I used to forget. Okay, you please tell me that it should be recorded. Now it is clear. Everyone, you understood or not? Reply fast, fast, fast. Reply rest. Only Pranav. I got. What about the others? Yeah, Amish, Akshay. What about the others? What about the others? Please reply. I'm not getting your reply. So we will move where we left in our last class. Okay. We did present indefinite. All of you can remember, right? Present indefinite. We did. Any question, any query regarding present indefinite, the construction of present indefinite. If you are having any question, just ask me. Otherwise, I'll move. Present indefinite. Just recapitulation, the construction for present indefinite, the standard construction is subject plus verb plus subject plus verb plus object, right? And the exception, what was the exception? I asked you to write. In our last class, you have written in your notebook. Who will tell me what was the exception? What was the exception that you have written? मैंने कुछ एक्सेप्शन के लिए बोला था. ऑलवेज एस प्लस बी प्लस ओ, उसके साथ एक एक्सेप्शन था. क्या था वो? Am I connected? Am I connected? Am I connected, beta? Okay. Vanshita, Namish, now you tell me that what was the exception in present indefinite that you have written. I told you a small rule. Pranav, very good. Pranav, very good. Very good, Pranav. Anyone else? Only one answered. What does that mean, beta? Only one told me the answer. What I am asking, that I asked you to write down a special rule in simple present or present indefinite tense. What was that you have written? What is the regular construction? That is subject plus verb plus object, right? Regular construction क्या है? Subject plus verb plus object है. एक और रूल मैंने लिखवाया था, वो क्या था? बस एक ने मुझे आंसर दिया, बाकी लोगों का क्या हो गया? बताओ बताओ, tell me. Hope you people are having the notebook in front of you. आपके पास वो नोटबुक है जिसमें आप लिख रहे थे. मैंने बोला था आपको लिखने के लिए, आपने लिखा भी होगा. बताइए मुझे क्या था वो? It's not done. Chalo, I'm repeating. Write down. If the subject is third person singular number, if the subject is third person singular number, then s or es is added after the main verb. If the subject is third person singular number, then s or es is added after the main verb, right? You have written. Am I connected? But if I am asking that whether I am connected or not, then and there you are saying yes. But when I am asking question, you are not replying. The visual is not clear. I am not visible. The board is visible or not? Board visible like me? Okay. चलो तो फिर सिंपल प्रेजेंट में किसी को कोई दिक्कत नहीं है. सिंपल प्रेजेंट में किसी को कोई दिक्कत नहीं है. Repeat, Vanshita. Chalo, I am repeating. If, write down. If the subject
is third person, if the subject is third person singular number, if the subject is third person singular number, then S or ES. How to write S or ES? It's S or ES. S or ES. In this way, you need to write S or ES is added after the main verb. S or ES added after the main verb. Now we will move to simple past or past indefinite. Okay, the second cell, past indefinite. So here it would be past and here it would be indefinite. Right? Past and indefinite. Right? Okay, no issue, no issue, no issue. I'll write on. If the subject is third person singular number, if the subject is third person singular number, then S or ES, S or ES is added after the main verb. S or ES is added after the main verb. इसीलिए हम लोग he does the work किए थे, याद है? हम लोग he do the work नहीं लिखे थे. I do the work, we do the work, you do the work. उसके बाद he does the work किए थे, याद है? Could you remember? Sure. If the subject is third person singular number, if the subject is third person singular number, then S or ES is added after the main verb. If the अगर subject third person singular number होता है, देखो he third person singular number है ना? He third person singular number है. Welcome बेटा. तो फिर he के बाद क्या होगा? Do के साथ ES लग जाता है. He does the work, not he do the work. He does the work. ठीक है? अब हम लोग आएंगे कहां पे? पास्ट इंडेफिनाइट में. ठीक है? ठीक है? चलो अब हम लोग पास्ट में आएंगे. हमारे पास what are the 5 subjects that we have? Just repeat, answer fast. जल्दी से बताओ. What are the 5 subjects that we are having? You made a chart, you made a table. Last class में आपने टेबल में बनाया था. कितने subjects हैं in total? Am I connected or not? Not able to understand. Am I connected? Yeah. You Pranav, how can it be 3? How can it be 3? Yes, Nikhil, correct. 5. What are those 5? 5 क्या है? What about the other students? बाकी लोगों को क्या हुआ? बाकी लोग मुझे रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं. What about the other students? 5 सब्जेक्ट्स कौन कौन सा है? सिंपल परफेक्ट, ये सब्जेक्ट है. हैं? सिंपल और परफेक्ट सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट का टेबल बनाए थे आप लोगों ने. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर I, फर्स्ट पर्सन प्लूरल we, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल बोथ you, और थर्ड पर्सन में हम रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं he, she, it, this, that को, और प्लूरल में they, these, those को. याद आया? So 5 सब्जेक्ट्स होते हैं बेटा. I, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर. हाँ बेटा, टेल मी. Who's Simran? What is the doubt? Ask fast. ACS क्या होता है? ACS क्या होता है? What is ACS?
What is ACS? Ask your doubt first. The table that we made. Might be. Chalo, you ask me the doubt, you type it down, then let us move. ठीक है, हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं. क्या क्या 5 सब्जेक्ट हैं? I, we, they are the representative. First person singular number, plural number. Second person singular number and plural number both are same. Third person singular number में हम लोग he, she, it कुछ भी लिख दो. हम लोग he लिखते हैं he और प्लूरल में लिखेंगे they. Then what is the construction? What was the construction for present indefinite? What was the construction for present indefinite? It was s plus v plus o. Subject plus verb plus object. यही था ना construction. And what we learned that to change the tense of the sentence, we need to change the finite verb. Which verb? The finite verb. To change the tense of the sentence, we need to change the finite verb. ठीक है? Tense change करने के लिए हमें कौन सा verb change करना है? फाइनाइट वर्ब चेंज करना है. और एक सेंटेंस में कौन सा वर्ब फाइनाइट है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैसे पता करते हैं? That which verb is the finite one in a sentence? Which verb is finite in a sentence? How to find it out? Tell me. सर यहाँ पे चैट नहीं आ रहा. इसमें चैट आता है, इसमें कुछ लोगों का आ रहा है, ज्यादातर लोग का आ ही नहीं रहा. इसमें आता है, कुछ नहीं चैट नहीं आता. क्या होता है, कुछ लोगों की चैट यहाँ पे आता है, कुछ लोग 2 दिन को वहाँ पे आते हैं. Sorry, beta. Chalo, let us continue. I, we, you, he, they, and what was the construction? Subject plus verb plus object. What you were doing in our last class? Last class में आप क्या कर रहे थे? These are available in YouTube. You can have a look over there. Just type Phoenix classes. वहाँ पे आपको क्लास मिल जाएगा. ठीक है ना? वहाँ पे आप चेक कर लेना. Otherwise, I'll give you. No issue. Don't worry. I'll give you. ठीक है ना? बहुत सिंपल से चीजें हैं. I'll give you. Okay. Very good. S plus B plus O. Now, to change the tense of the sentence, which particular verb we need to change is always the finite verb. And in a sentence, which one is the finite verb? The verb that comes just after the subject is always finite in nature. Yes or no? The verb that just comes after the subject is always finite in nature. ठीक है ना? तो फिर हमारे पास यहाँ पे एक ही verb है. तो to change the tense from present to past, हम लोग present tense में subject plus verb plus object किए थे. अब past tense में क्या करेंगे? इस verb को change करेंगे. change करके क्या कर देंगे? past form लिख देंगे और कुछ नहीं है. simply we will change it into past. So our construction would be, write down the construction here: s plus v2 plus o, subject plus verb 2 plus object. ठीक है? What would be the construction for past indefinite or simple past? Is subject plus second form of verb and object. ठीक है? Subject plus v2 plus object. Clear है? कोई doubt है? Clear है? Clear है सबके लिए? या doubt है? Very good. अगर हमें मिल गया subject plus verb plus object, sorry, subject plus verb 2 plus object, तो फिर हमें अगर sentence form करना है, तो I do the work था ना, I do the work था, याद है? I do the work था, वो change होके क्या हो जाएगा? Do के बदले में what is the V2 second form of do? Do का second form क्या है? Very good अक्षर, very good. ठीक है, तो फिर क्या होगा? I did the work, we did the
वर्क यू डिड द वर्क ही डिड the work they did the right. Yes or no? No special rule is applicable over here in the case of past tense. In present tense there was a rule that if the subject is third person singular number, s or es is added after the verb, but there is no exception in past indefinite. Past indefinite clear हो गया सबको? Understood everyone? Yes बेटा गुरसिमरन, आपको लिखना है, आपने टेबल नहीं बनाया था क्या? All of you are having the grid made with you, right? अब सबके पास वो ग्रिड है कि नहीं? जो ग्रिड मैंने बनाया था 12 सेल वाली जो ग्रिड मैंने बनवाया था, आप लोगों के पास वो ग्रिड है कि नहीं है? You are having the grid or not? नोटबुक को ऐसे करके, नो इशू बेटा, नो इशू। उसी ग्रिड में हम फिल अप कर रहे हैं ना, उसी ग्रिड में हम बना रहे हैं, समझ में आया? हम लोग उसी ग्रिड में इसको बना रहे हैं। ये जो है दूसरे वाली सेल है, पहले वाले सेल में लास्ट क्लास में हम कर चुके थे, तीसरे वाले सेल में है। अब हम लोग तीसरे वाले सेल में जाएंगे जो कि हमारे लिए फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनाइट का होगा, है ना? फ्यूचर इंडेफिनाइट का होगा, ठीक है? तीसरे वाले जो सेल है वो फ्यूचर इंडेफिनाइट का होगा। नाउ यू राइट डाउन सम रूल्स, put a star, next page put a star and write down to write any sentence, to write any sentence in future tense, to write any sentence in future tense, either shall or will to be used. To write any sentence in future tense, either shall or will to be used, either shall or will to be used. Done? To write any sentence in future tense, either shall or will to be used. लिख लिया? लिख लिए? Good. Now next point, next star, write down shall or will are shall or will is करोगे, अगर और लिख रहे हैं तो is करोगे, shall and will करोगे तो are करोगे। दिस इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ओके? ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड में हम लोग पढ़ेंगे। इफ यू आर राइटिंग shall and will then are, if you are writing shall or will is, ठीक है ना? ये भी एक ग्रामर का पार्ट है जो आपको सिखाएंगे बाद में, अभी करो। You can write it in this way, shall or will is auxiliary verb. Shall or will is auxiliary verb, ठीक है? नेक्स्ट वन क्या लिखेंगे? An auxiliary is always placed. An auxiliary, yes, sure. रिपीट करते हैं। फर्स्ट हम लोगों ने क्या लिखा है? टू राइट एनी सेंटेंस इन फ्यूचर वी नीड टू यूज इधर शैल और विल। के
फ्यूचर टेंस में कोई भी सेंटेंस लिखने के लिए हमें शैल या विल यूज करना जरूरी है। ठीक है, फ्यूचर टेंस में आपको कोई भी सेंटेंस अगर लिखना है या तो आपको शैल यूज करना पड़ेगा या तो आपको विल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में हम क्या लिख रहे हैं, शैल और विल इज ऑक्सिलियरी। शैल और विल इज ऑक्सिलियरी। शैल और विल किस तरीके का वर्ब है कि ऑक्सिलियरी वर्ब है। ठीक है, राइट डाउन शैल और विल इज ऑक्सिलियरी। Done. Next, an auxiliary and an auxiliary is always placed in between the subject and the main verb. An auxiliary is always placed in between subject and the main verb. Auxiliary जो है वो हमेशा subject या main verb के बीच में लगता है। ठीक है ना, उसको हम कहाँ लगाएंगे, subject और main verb के बीच में। क्लियर? बेटा प्लीज response so that I understand that you got the point that is being spoken. एक ही बच्चे को समझ में आया, बाकी लोग कहाँ हैं? 2 को। What about the others? Are you attending the class? Are you attending the class? How many of you are attending the class? Just say yes, sir. Just say yes, sir. Only Gusimran, Anushka, Vanshita, Kavya, Mridul, Pranav. What about the others? Akshay. बाकी लोग कहाँ गए? Look, it is being shown that they are attending the class, but they are not in front of the system. They are not attending the class. And after that, if you can means if you expect कि भाई हम सीख जाएंगे तो फिर थोड़ी होएगा। आप क्लास अटेंड ही नहीं करेंगे और आप बोलेंगे कि हमें आता ही नहीं है, समझ में नहीं है, तो फिर कैसे होंगे? आपको समझ में तब आएगा ना जब आप क्लास अटेंड करोगे। चलो नेक्स्ट क्या लिखना है? You wrote the third one, that auxiliary is always placed in between the subject and the main verb. Next, write down. If a verb is preceded, with either shall or will, if a verb is preceded with shall or will or any other modal auxiliary, if a verb is preceded with shall or will or any other modal auxiliary, then the form of the main verb will not be changed. Definitely I'll repeat. If a verb is preceded with shall or will or any other modal auxiliary, then the form of the main verb will not be changed. क्या मतलब होता है, मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूं। अगर कोई भी वर्ब के आगे शैल या विल लगता है या कोई भी दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी लगता है, शैल विल या कोई और मॉडल ऑक्सिलरी कुछ भी अगर कोई भी मेन वर्ब के आगे लगता है तो फिर मेन वर्ब जो है उसका फॉर्म चेंज नहीं होगा। क्या? उसका फॉर्म चेंज नहीं होगा। कब? अगर उसके आगे हम लोग शैल या विल लगाते हैं या कोई दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी लगाते हैं। कोई भी वर्ब के आगे
या तो हम लोग शैल विल लगा रहे हैं या कोई दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी लगा रहे हैं, तो उस वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक दूसरे जगह पे भी नहीं होता है, हम लोग उसको पढ़ के आए हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। किसके, कौन सा था बताओ, और कौन से केसेस में ऐसे होते हैं कि वर्ब के आगे और क्या लगने पे वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होता है। एक तो शैल विल या दूसरे मॉडल ऑक्सिलरी लगने पे चेंज नहीं होता है। एक दूसरी चीज भी हमने बताया था आपको, वर्ब के आगे अगर वो लग जाए तो वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होगा। क्या था वो, आप भूल गए? इंफिनिटिव याद है? इंफिनिटिव किसको बोलते हैं? व्हेन अ वर्ब इज प्रेसिडेड विद टू, TO2। मैंने बोला था, याद है कि TO2 अगर कोई वर्ब के आगे लग गया तो उस वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होगा, वो इंफिनिटिव हो जाएगा, उससे टेंस पता ही नहीं चलेगा। याद है? एक को याद है बस, गुरसिमरन को, बाकी लोगों को याद नहीं है। व्हाट अबाउट द अदर्स? सिर्फ गुरसिमरन को याद है, वंशिता को भी याद है, निखिल को भी याद है। चलो 3 लोगों को याद है, बाकी लोगों को क्या है? काव्या को भी याद है। तो फिर 2 केसेस में ऐसे होते हैं, एक प्रणव को भी याद है, या तो हम लोग शैल विल लगा रहे हैं या दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी लगा रहे हैं वर्ब के आगे, तो फिर क्या होगा? फॉर्म चेंज नहीं होगा। और इंफिनिटिव 2 वाले जो केस होते हैं, जो इंफिनिटिव 2 पे नॉन फाइनाइट्स होते हैं, उसमें भी वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो चारों रूल हम लोगों को समझ में आ गया। दैट टू राइट एनी सेंटेंस इन future tense you need to use shall or will, number 1. Number 2, shall and will, their modal auxiliaries. Number 3, modal auxiliary or auxiliaries should be placed before, should be placed between subject and the main verb. And the third one is, if a verb is preceded with shall or will or any other modal auxiliary, then the form of the main verb remain unchanged, change नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको हिंदी में एक बार बता देता हूँ। फ्यूचर टेंस में मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? सबको समझ में आ रहा है? मेरी वॉइस क्लियर आ रहा है ना सबको? गुड निखिल। मैं आपको एक बार हिंदी में बता दूं, फ्यूचर टेंस में कोई भी सेंटेंस अगर आपको लिखना है, या तो आपको शैल यूज करना है या तो विल यूज करना है। ठीक है, शैल विल क्या है? बाय नेचर दे आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ लगता है? सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में लगता है। ठीक है, और चौथे में क्या बताया था कि कोई भी वर्ब के आगे अगर ऑक्सिलरी शैल विल या मॉडल ऑक्सिलरी लग गया तो फिर क्या होगा? उसका फॉर्म चेंज नहीं होगा। तो फिर हम लोग आप क्या करेंगे, ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन हम बनाएंगे इस चारों रूल के सहारे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो हमारा बेस कंस्ट्रक्शन है ही, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें सही चल रहा है सर, उसमें चैट नहीं आ रहा है, मतलब कुछ लोगों के ये तो यहाँ पे तो आता है, वहां पे बाकी सबका आता है, लेकिन वहां पे आ नहीं रहा। आपने वहां पे होस्ट किया? चलो नो इशू। Yes, we will apply this four and will get the construction. ठीक है, पहला कंस्ट्रक्शन में क्या बोला गया कि शैल या विल यूज करना है हमें, या तो शैल लगेगी या तो विल लगेगा। तो फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये पूरे कंस्ट्रक्शन के अंदर कहीं हमें शैल या विल लगाना है। दूसरे में हम लोगों को पता है कि शैल और विल ऑक्सिलरी है, और तीसरे में हमें पता है कि शैल और विल या तो कोई भी ऑक्सिलरी जो है सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में लगता है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में लगता है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, तो फिर बीच में लगेगा शैल और विल। चलो लगा देते हैं, शैल या विल, या तो शैल लगेगा या तो विल लगेगा, है ना? या तो शैल लगेगा या तो विल लगेगा। ठीक है, और चौथे रूल के हिसाब से हमें क्या पता है, अगर कोई वर्ब के आगे शैल या विल लग गया तो उसका फॉर्म चेंज होगा नहीं, V1 में ही रहेगा, मेन फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, तो हमें अपना कंस्ट्रक्शन मिल गया, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, को हम पास कर दें। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देते हैं।
सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। क्यों क्यों ऐसा है, समझ में आया कि व्हाई द फ्यूचर इंडेफिनाइट कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक को ही समझ में आया, बस गुरसिमरन को समझ में आया, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया। देन टेल मी कि समझ में नहीं आया। आई मे रिपीट। काव्य को भी क्लियर हुआ, दो लोगों को बस क्लियर हुआ, बाकी लोगों को हुआ नहीं अभी तक। गुरसिमरन को और काव्य को, हाँ वो तो आप दोनों का तो मुझे पता चल गया। प्रणब को भी क्लियर हुआ, वंशिता को भी क्लियर हुआ, अनुष्का भी क्लियर हुआ। 4 लोगों को समझ में आए, मतलब बाकी लोगों को समझ में नहीं आया। देन जिनको समझ में नहीं आया प्लीज टेल मी दैट यू कुड नॉट अंडरस्टैंड सो दैट आई मे रिपीट। आप लोग हो ही नहीं सिस्टम के सामने, आप क्लास अटेंड ही नहीं कर रहे। निखिल को भी आया, आप क्लास अटेंड ही नहीं कर रहे ज्यादातर बच्चे। अक्षय को भी क्लियर हो गया। चलो तो फिर हम लोग आई डू द वर्क वाले जो सेंटेंस था उसी को इस कंस्ट्रक्शन के हिसाब से इसमें लिखेंगे। आई के बाद क्या होता है, शैल होता है। आई के बाद विल नहीं होता है, आई के बाद शैल होता है। आई के बाद विल होता है कोई डिटरमिनेशन केसेस। हम उसमें मॉडल जब पढ़ेंगे तब हम सीखेंगे कि शैल और विल कौन कहां पे होता है। अभी आप याद रखो, आई के बाद आप क्या करोगे, शैल लगाओ। ठीक है, आई शैल, आई सब्जेक्ट आई शैल, उसके बाद वर्ब क्या है, डू है, इसका फॉर्म चेंज नहीं होगा, है ना। आई शैल डू, ऑब्जेक्ट में क्या था, द वर्ब। वी के बाद भी शैल लगता है, वी शैल डू द वर्ब। यू के बाद क्या लगेगा, विल लगेगा। ठीक है, यू विल डू द वर्ब। ही के बाद क्या लगेगा, विल लगेगा। डे के बाद क्या लगेगा, डे के बाद क्या लगेगा, एनीवन, नो वन, विल लगेगा। So I shall do the work, we shall do the work, you will do the work, he will do the work, they will do the work, they will do the work. And the construction is subject plus shall or will plus verb plus object. ठीक है, clear everyone, clear everyone, good. Pranav, Gursimran, काव्या, मृदुल, वंशिता। चलो आपको समझ में आ गया। तो इंडेफिनाइट हमारे लिए क्लियर हो गया, सिंपल और इंडेफिनाइट हमारे लिए क्लियर हो गया। मैं एक बार रिकैपिचुलेट कर लेता हूँ। प्रेजेंट टेंस में क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एंड फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम चलेंगे कंटिन्यूअस की तरफ। ठीक है, पहला हमारे सेल क्या आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। Put star again where you are writing, making the notes for you. There, put a star and write down. To write any sentence in continuous tense, to write any sentence in continuous tense, a be verb, a be verb, be verb ऐसे लिखोगे,
be verb, a be verb needs to be used. To write any sentence in continuous tense, a be verb needs to be used. क्या मतलब है कि कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी सेंटेंस अगर आपको लिखना है तो आपको कौन सा वर्ब यूज करना पड़ेगा? एक बी वर्ब यूज करना पड़ेगा। एज हेल्पिंग वर्ब आपको बी वर्ब यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना? कोई भी सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में लिखने के लिए आपको क्या करना है? एक बी वर्ब यूज करना, ठीक? गुड। नंबर 2 में लिखोगे बी वर्ब इज एन ऑक्सिलियरी। Be verb is an auxiliary. Be verb is an auxiliary. Number 3 क्या लिखोगे? An auxiliary is always placed in between the subject and the main verb. An auxiliary is always placed in between the subject and the main verb. अपने फ्यूचर में ऑलरेडी लिख चुके हैं। एंड नंबर 4 में क्या लिखेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, write down if a verb is preceded with any form of be verb in active voice, any form of be verb in active voice, then ing ऐसे लिखोगे ing, सामने छोटा सा हाइफन ing to be added after the main verb, I repeat, if a verb is preceded with any form of be verb, then I'm coming to you, beta. Gursimran, I'm coming to you. Let me make it clear. If a verb is preceded with any form of be verb in active voice, you must mention in active voice, because in passive voice it changes into third form of the verb. So in active voice, if a verb is preceded with any form of be verb, ing to be added after the main verb. ठीक है? क्या मतलब होता है कि अगर एक्टिव वॉइस में कोई भी वर्ब के आगे, कोई भी वर्ब के पहले अगर बी वर्ब का कोई भी फॉर्म लग जाता है, बी वर्ब के फॉर्म तो आपको पता है, प्रेजेंट टेंस में am is are, पास्ट टेंस में was were, फ्यूचर टेंस में shall be will be, ठीक है? इनमें से कोई भी एक अगर वर्ब के आगे लगते हैं एक्टिव वॉइस में, फिर क्या होगा? वर्ब के पीछे ing लगेगा, ठीक है? वर्ब के साथ ing लगेगा। अगर वर्ब के आगे इनमें से कुछ भी लग जाता है, am is are, was were, shall be will be, इनमें से अगर कुछ भी लगता है तो वर्ब के पीछे ing लगेगा। कौन से केस में? अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो, ठीक है? समझ में आ गया? यस गुरसिमरन, आस्क व्हाट यू आर आस्किंग। व्हाट द मीनिंग ऑफ beta, one more time please, the chat disappeared. What you were asking? What you are asking? Just a minute. Sir? Yes, beta, tell me. Sir, what's the meaning of preceded? Preceded मतलब पहले. Okay, sir. Preceded मतलब पहले. Okay?
चलो, तो अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन बनाएंगे कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में नहीं जाते, कंटिन्यूअस का कंस्ट्रक्शन बनाएंगे ये चारों पॉइंट्स के हिसाब से। ठीक है, हमारे पास क्या क्या है, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है, ये तो है ही, ये सुन लो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो है ही। ठीक है, तो हम लोग पहला रूल क्या सीखे कि अगर कंटिन्यूअस में हमें लिखना है देन हमें क्या करना है, एक बी वर्ब यूज करना है। ठीक है, टेंस के हिसाब से चेंज होंगे वो बाद में आते हैं, बी वर्ब यूज करना है। बी वर्ब रूल नंबर 2 में हमें क्या पता चला कि बी वर्ब जो है ऑक्सिलियरी है। उसके बाद हमें क्या पता चला कि ऑक्सिलियरी कहाँ पे बैठता है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में, है ना, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हमेशा लगता है। सो इट इज सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हमने लगाया। देन फोर्थ रूल क्या सिखाते हैं कि अगर कोई भी वर्ब के आगे बी वर्ब का कोई भी फॉर्म लगता है तो वर्ब के पीछे क्या लगते हैं, आईएनजी, आईएनजी। क्लियर, क्यों हुआ ये, कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा क्यों है, आपको समझ में आ गया? आया कि नहीं? गुड, द अदर्स, सिर्फ एक गो सिमरन को समझ आया, बाकी लोगों को नहीं आया समझ में। प्रणब को भी आया है, काव्य को भी आया है, 3 लोगों को समझ में आए, और क्लास में इतने सारे लोग हैं, वंशिता को भी समझ में आए हैं, अनुष्का को भी ना आया है। चलो, तो फिर मैं मान लेता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया कि वाई सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब कंटिन्यूअस में हम कोई भी सेंटेंस लिखना है तो फिर हमें बी वर्ब यूज करना है। बी वर्ब क्या है, ऑक्सिलियरी है। ऑक्सिलियरी कहां पे बैठते हैं, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में बैठते हैं। और हमने फोर्थ रूल में क्या सीखे कि कोई भी वर्ब के आगे अगर बी वर्ब लगता है तो उसके पीछे एक्टिव वॉइस में आईएनजी लगता है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, हमारे पास 2 वर्ब है, एक मेन वर्ब है और एक ऑक्सिलियरी है, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। हमें ऑलरेडी क्या पता है, टू चेंज द टेंस ऑफ द सेंटेंस वी नीड टू चेंज द फाइनाइट वर्ब। ये सुन लो, हमें अगर टेंस चेंज करना है तो फिर हमें कौन सा वर्ब चेंज करना है, फाइनाइट वर्ब चेंज करना है। ठीक है, और सेंटेंस में कौन सा वर्ब फाइनाइट होता है, द वर्ब दैट कम्स इमीडिएटली आफ्टर द सब्जेक्ट इज ऑलवेज फाइनाइट इन नेचर। कि सब्जेक्ट के बाद जो आएगा, इमीडिएट आफ्टर द सब्जेक्ट, जस्ट सब्जेक्ट के बाद ही जो वर्ब आएगा वो फाइनाइट होगा, उसका नेचर फाइनाइट होगा, उसके बाद नॉन फाइनाइट्स आते हैं। ठीक है ना, ये आपको पता है ना, ये आपको पता है ना? देखो, ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में ना यही दिक्कत है। ऑफलाइन क्लास होता तो मुझे आपके चेहरे से समझ में आ जाएगा कि आपको पता है कि नहीं है। टेल मी, आप बताइए, पता है कि नहीं है? माय गॉड, am I connected or not? आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। आप देखो, जो चीजें मैं पढ़ाते जा रहा हूँ ना, एक के बाद आप पिछले वाले चीजें भूल जाओगे तो फिर आगे के साथ समझ नहीं पाएंगे। ठीक है ना, एक सेंटेंस में टेंस चेंज करने के लिए हमें कौन सा वर्ब चेंज करना है, फाइनाइट वर्ब चेंज करना है। टू चेंज द टेंस ऑफ अ सेंटेंस वी नीड टू चेंज द फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के डेफिनेशन में भी हमें यही समझ में आया दैट फाइनाइट वर्ब इज द वन फ्रॉम व्हिच द टेंस ऑफ द सेंटेंस कैन बी अंडरस्टूड। So definitely to change the tense of the sentence you need to change the finite verb. Finite verb आपको change करना है। और हमें एक सेंटेंस के अंदर फाइनाइट कैसे पता चलता है, मैंने आपको बता दिया पहले ही, कि the verb that comes immediate after the subject is finite in nature। तो फिर हमारे लिए फाइनाइट क्या होगा, ये बी जो है ये फाइनाइट होगा, है ना, ये बी वर्ब फाइनाइट होगा। यस और नो, ये बी वर्ब होगा फाइनाइट और नो? गुड, एक ही ने बोला यस सर, बाकियों को अगर डाउट है आप पूछो, डाउट नहीं है तो बताओ कि हाँ यही होगा।
ओके, तो बी वर्ब के फॉर्म हमें पता है, प्रेजेंट टेंस में होता है एम इज आर, शैल पास्ट टेंस में होता है वाज वर, और फ्यूचर टेंस में होता है शैल बी विल बी। ये तो हमें पता है ऑलरेडी। प्रेजेंट टेंस में बी वर्ब का फॉर्म होता है एम इज आर, पास्ट टेंस में होता है वाज वर, फ्यूचर टेंस में होता है शैल बी और विल बी। ठीक है, तो फिर प्रेजेंट टेंस में बी वर्ब की जगह पे हम लोगों को क्या लिखना है कंस्ट्रक्शन में? बाकी कंस्ट्रक्शन तो यही रहेगा, क्योंकि हमें टेंस चेंज करना है, बोले तो सिर्फ फाइनाइट वर्ब का टेंस चेंज करना है। मतलब इसका एक बार प्रेजेंट टेंस अगर हम लोग लिखेंगे, बी वर्ब का प्रेजेंट का फॉर्म लिखेंगे, तो फिर ये किसका कंस्ट्रक्शन बन जाएंगे? इट विल बी द कंस्ट्रक्शन फॉर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यस और नो? If we write the form of be verb in present tense, then definitely it will become the construction of present continuous tense. If we write the past form of this be, then definitely it will become past continuous. If we write future form of be, then it will become future continuous. ऐसे ही होंगे ना? ऐसे ही होंगे ना? तो हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन, ये क्या है हमारे लिए? प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करेंगे? ये जो कंस्ट्रक्शन है ये आप कंटीन्यूअस ऊपर लिख के रखो, सामने आपका कंस्ट्रक्शन कंटीन्यूअस लिखा हुआ। इसके कंस्ट्रक्शन हम लोग बना लेंगे, सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब की जगह पे हम लिखेंगे या तो एम होगा, या तो इज होगा, या तो आर होगा। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। Subject plus am is there plus verb plus ing plus object. Clear? Clear? ये होगा कि नहीं होगा? अगर किसी को डाउट है कि क्यों हो रहा है, you can ask me, I may make it clear one more time. अगर सबको समझ में आ गया तो फिर हम इससे सेंटेंस बनाएंगे। आ गया समझ में सबको? वेरी गुड। चलो तो फिर हम सेंटेंस बनाते हैं। आई के बाद क्या आएंगे? एम। आई एम हमारा मेन वर्ब क्या था? डू था। उसके साथ हम क्या करेंगे? आईएनजी लगा देंगे। आई एम डूइंग द वर्क। वी के बाद क्या आएगा? वी आर डूइंग द वर्क। यू आर डूइंग the work. He is doing the work. They are doing the work. ठीक है? अंडरस्टूड? क्लियर? ये क्लियर हो गया पूरी? गुड। बाकी लोग सिर्फ एक नहीं है बोला है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्लियर है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कंस्ट्रक्शन क्लियर है? वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे? पास्ट में जाएंगे। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे। पास्ट में सिंपल, आपको ऑलरेडी पता है, मैं आपको बता चुका हूँ। पास्ट टेंस में हमें करना क्या है? बस हमें फाइनाइट वर्ब पास्ट में चेंज कर देना है। तो फिर वो कैसे होगा? बी वर्ब के पास्ट का फॉर्म हमें पता है, या तो वाज लगेगा या तो वर लगेगा। बाकी का चीज एज यूजुअल होगी, सब्जेक्ट प्लस वाज और वर, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई के बाद क्या लगता है? वाज लगता है। ठीक है, आई वाज, वी वर लगता है, यू के बाद वर लगता है, टी के बाद वाज लगता है, डी के बाद वर लगता है। ठीक है, तो पास्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस ऐसे बनेंगे। आई वाज डूइंग द वर्क, वी वर डूइंग द वर्क, यू वर डूइंग द वर्क, ही वाज डूइंग द वर्क, दे वर डूइंग द वर्क। ठीक है, पास्ट सब लोग पास्ट डन।
गुड एवरीवन, ऑल ऑफ यू हैव कॉपीड, आप लोगों ने कर लिया, लिख लिया ये, गुड गुड। चलो अब हम जाएंगे फ्यूचर में। एकदम सिंपल सा चीज है, हमें जो बी वर्ब है उसका फ्यूचर का फॉर्म लगा देना है। फ्यूचर का फॉर्म क्या है बी वर्ब का? फ्यूचर का फॉर्म क्या है? या तो शैल बी होगा या तो विल बी होगा। शैल बी और विल बी क्यों होगा? मैंने आपको बोला था जब हम दे रहे थे ये बी वर्ब और हैव वर्ब के चार्ट के, शैल बी विल बी क्यों होता है, शैल अब विल अब क्यों होता है, आपको याद है? मैंने बोला था कि तब मैं आपको बाद में सिखाऊंगा जब मैं ये पढ़ाऊंगा कि व्हाई द फॉर्म ऑफ बी वर्ब इन फ्यूचर इज शैल बी विल बी। क्योंकि जब आपने फ्यूचर टेंस के लिए आपने जब चारों पॉइंट्स बनाए उसमें आपने क्या लिखा कि फ्यूचर टेंस में कुछ भी आपको लिखना है उसमें आपको शैल या विल लगाना है, ठीक है ना? तो फिर बी को हम लोग फ्यूचर में लिखना है तो फिर शैल या विल तो लगेगा ही। और शैल विल कहाँ पे लगता है? सब्जेक्ट के बाद लगता है, मेन वर्ब के पहले लगता है। तो फिर बी हमारे लिए तब मेन वर्ब बन जाएंगे जब हम उसके आगे शैल या विल लगाएंगे। तो फिर देखो उसके आगे लग रहा है। और तीसरे पॉइंट में हमने क्या बताया कि अगर कोई भी वर्ब के आगे शैल और विल अगर लग जाता है, बेटा 2 मिनट्स विल क्लोज दिस क्लास। अगर हम लोग शैल या विल लगाते हैं बी वर्ब के आगे तो फिर क्या होगा? बी वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होगा, है ना? बी वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होगा, यस और नो? तभी शैल बी या विल बी होता है, ठीक है? तो फिर हम इसको क्या करेंगे? शैल बी या विल बी, सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। तो आई shall be doing the work, we shall be doing the work, you will be doing the work, he will be doing the work, they will be doing the work, ठीक है? फ्यूचर टेंस। Okay, so you may ask me if you have any doubt till now. Till now, if you are having any doubt, you may ask. Everyone, I'm asking everyone. सबको पूछ रहा हूँ मैं। अगर आपको कोई भी किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नो डाउट? किसी के पास कोई भी डाउट नहीं है? इंडेफिनाइट प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एंड फ्यूचर सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंडेफिनाइट में क्या होता है? एस प्लस वी प्लस हो, एस प्लस वी टू प्लस हो, एस प्लस शैल और विल प्लस वी प्लस हो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एंड फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? कंटिन्यूअस में क्या होता है? प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट पास्ट में होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और फ्यूचर में होता है सब्जेक्ट प्लस शैल बी और विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? सो एवरीवन, सारे लोगों को समझ में आ गया? गुड। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ओके, गुड नाइट बेटा। या तो वो सोता है या तो नीचे जाके किसी को से बात करता है। ठीक है? फाइल ओके सर? हाँ डन है? डन कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। कैसी बात कर दीजिएगा सर? हाँ सर कर देंगे।